Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we are going to cover up section number 196 in this video. In case you are new to this channel, I upload videos every day at 7 pm. In case you have not subscribed to the channel, do consider subscribing to my channel for more videos. And also hit the bell icon for getting updated or notified about the videos that I upload. So without wasting any further time, let's start with section 196. Yesterday we covered the introduction of this chapter where we learned a lot of definitions that are going to be used in this particular chapter. Right. So today we are going to start with section 196. Section 196 is what? Section 196 says appointment of managing director, whole-time director or manager. Whenever a company wants to appoint a managing director, whole-time director or a manager, that company needs to comply with section 196. Okay. Section 196 of the Act contains the provisions for appointment of managing director, whole-time director or manager. According to this section, a company shall not appoint or employ a managing director and a manager at the same time. See, this line we read it in the introduction part also, right? We studied the reason also why this is written. The reason was because both of them have the responsibility, duty to manage the affairs of the company. So if we have a managing director who is doing some management work, then why would we need a manager to do the same work? That is why both of them cannot be appointed at the same time. This reason we covered in the introduction part as well. A company shall not appoint or employ a managing director and a manager at the same time. This is as per which section? Section 196. Which subsection? Subsection 1. 196 subsection 1 says both cannot be appointed at the same time. In other words, no company is permitted to appoint a manager if a managing director is already appointed and vice versa. However, there can be both MD and WTD in a company. This is obvious क्योंकि दोनों का काम अलग अलग होता है, तो दोनों का काम अलग अलग इस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को एक साथ अपॉइंट नहीं कर सकते, राइट. सो टेन्योर की अगर मैं बात करूँ तो टेन्योर सबसेक्शन 2 के अंदर मेंशन्ड है. सबसेक्शन 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? नो कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन एज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years एट अ टाइम. जब भी कंपनी अपॉइंटमेंट कर रही है इनमें से किसी का भी, तो उस केस में वो एट अ टाइम 5 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकती. मतलब अगर मैं आज की डेट में अपॉइंटमेंट कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती मैं अगले 6 साल के लिए इस पर्टिकुलर पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट कर रही हूँ. नहीं, आप एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 years का टेन्योर फिक्स कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो फॉर द पर्टिकुलर डायरेक्टर, पर्सन और मैनेजर, राइट. It is further provided that no reappointment shall be made earlier than 1 year before his expiry of term. Suppose मेरी कंपनी में कोई भी WTD है, मैनेजर है या MD है जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है फॉर 2 years, से फॉर 2 years, ठीक है, तो 2 साल के लिए किया है. आधे मतलब 6 months बाद ही मैं क्या चाह रही हूँ, मुझे उसका काम पसंद आ गया तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको रीअपॉइंट कर देती हूँ और 2 साल से बढ़ाकर मैं उसका टेन्योर 5 years कर देती हूँ. तो ये चीज़ मैं 1 साल पहले, जब उसका टेन्योर ख़त्म होने वाला है उसके जस्ट 1 साल पहले तक तो कर सकती हूँ. उससे भी पहले करना चाहते हो तो नहीं. मैक्सिमम आप जो कर सकते हो ये काम अर्लियर वाला, मतलब आप एक तरीके से जल्दी कर रहे हो रीअपॉइंटमेंट, उसका टर्म अभी ख़त्म भी नहीं हुआ और फिर भी आप रीअपॉइंटमेंट करना चाहते हो, तो ये जल्दबाजी भी आप 1 साल पहले तक ही कर सकते हो. उससे पहले आपको अलाउड नहीं है कि आप 2 साल पहले ही उसका रीअपॉइंटमेंट कर दो फॉर एनी फर्दर पीरियड, राइट. सो सिर्फ और सिर्फ वैसे तो उसी टाइम पे करना चाहिए जिस टाइम पर आपको उसको रीअपॉइंट करना है, बट स्टिल उन्होंने एक प्रोविज़न डाल दिया कि अगर आप जल्दी भी करना चाहते हो उसका रीअपॉइंटमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पहले आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, X was appointed as managing director for life by articles of association of a private company which was incorporated on 1st of June 2019. Examine whether X can be appointed as MD for life. हमने तो अभी पढ़ा. सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 5 years के लिए हो सकता है एट अ टाइम. अब इसमें ये तो नहीं लिखा कि सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ था सबसेक्शन 2 में. इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आप कंपनीज एक्ट के
खिलाफ नहीं लिख सकते। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऐसी कोई पावर नहीं दी टू सुपरसीड द कंपनीज एक्ट, तो उस केस में आप कंपनीज एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकते हो बाय मेंशनिंग सम clause or something like that in the articles of association, right? So here you cannot appoint MD for life, you have to appoint him maximum for a period of 5 years at a time. If you want to reappoint him, you can reappoint further, but at a time it can be only up to 5 years. So section 196 subsection 2 of Companies Act 2013 lays down that no company shall appoint or reappoint any person as its MD, whole-time director or manager for a term exceeding 5 years at a time. No concession is allowed by the act to private companies. तो यहाँ पर क्योंकि मेंशन किया था ना कि क्वेश्चन में कि प्राइवेट कंपनी है, तो ये सोचकर कि प्राइवेट कंपनी लिखा है तो अभी तक तो हमने कोई एग्जाम्पशन नहीं पड़ी, तो प्राइवेट कंपनी को भी सेक्शन 196 सब सेक्शन 2 को कंप्लाई करना पड़ेगा. सो नो कंसेशन और एक्सेप्शन इज अलाउड बाय द एक्ट टू प्राइवेट कंपनीज, हेंस एक्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज MD फॉर लाइफ बाय द प्राइवेट कंपनी कंसर्न्ड. अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट पर. तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इफ़ यू वांट टू अपॉइंट अ पर्सन एज MD, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, फर्स्टली ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164. व्हाट डज दिस मीन? किसी भी पर्सन को आप क्या बनाना चाहते हो, MD, WTD या मैनेजर, तो सबसे पहले 164 की डिस्क्वालिफिकेशंस तो अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए. इस चीज़ को चेक कर लो. मतलब उस पर्सन पर सेक्शन 164 पूरा अप्लाई करके देखो कि क्या कहीं पर भी किसी भी सबसेक्शन के अंदर वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो रहा है टू बी अपॉइंटेड एज अ MD, WTD या फिर मैनेजर. ठीक है, तो सबसे पहले तो 164 की कंप्लायंस चेक करो कि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट तो नहीं हो रही. सेकेंडली, एज पर सेक्शन 196 सब सेक्शन 3, नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हु. तो कोई भी कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती, या फिर क्योंकि मैनेजर वर्ड भी लिखा है तो मैनेजर को होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है, मैनेजर एम्प्लॉयड होगा, एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता जो कि is below the age of 21 years or has attained the age of 70 years. So अगर कोई person की age 21 years से कम है, 21 है तो बन सकते हो, 21 से कम है तो उस केस में आप MD, WTD और मैनेजर नहीं बन सकते. अगर आपकी एज 70 ईयर्स की हो चुकी है तो उस केस में भी आप MD, WTD और मैनेजर नहीं बन सकते. ठीक है, सो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? सेक्शन 196 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है. रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अबव द एज ऑफ 70 ईयर्स. तो इधर एक पहले तो लिख दिया कि नहीं कर सकते, बट नीचे एक स्पेशल रेजोल्यूशन वाली रिक्वायरमेंट डाल दी कि चलो अगर करना भी चाहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा दो, उसके बाद आप कर सकते हो अगर इवन इफ द पर्सन हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स. सो देयर इज़ अ रिलैक्सेशन इन केस ऑफ अ पर्सन अबव द एज ऑफ 70 ईयर्स. Accordingly, where a person has attained the age of 70 years, he may still be appointed to such office if a special resolution is passed in this respect. In such a case, the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such person. So यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वैसे तो देखो 70 years की एज हो जाती है तो you cannot be appointed as MD, WTD और manager, but there is a relaxation. What relaxation? If you are able to pass the special resolution in the general meeting, then in that case you can appoint a person who has attained the age of 70 years also as MD, WTD और manager of the company. बट इसमें जो अब आप नोटिस दोगे और फॉर द मीटिंग, उस नोटिस के अंदर आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर ये बताना पड़ेगा कि क्यों आप इस बंदे को अपनी कंपनी का MD, WTD या मैनेजर बनाना चाहते हो. देख लो, इस केस में मेरे हिसाब से क्या रीज़न होते होंगे? मोस्टली रीजंस ये होते होंगे कि वो पर्सन का एक्सपीरियंस बहुत है, वो अभी भी एक्टिव है, वो अभी भी डिसीजन मेकिंग अच्छी कर लेता है और उसको रिटायरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर सकता है, उसका एक्सपीरियंस इतना है वगैरह वगैरह. हम XYZ ऐसे रीजंस, जिस भी रीज़न की वजह से हम उस पर्सन को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, उस रीज़न को हमें अपने नोटिस के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में भी मैंशन करना पड़ेगा.
गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड इफ़ नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया तो उस केस में आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। फर्दर, वेयर नो सच स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड बट वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द मोशन exceeds the votes, if any, cast against the motion and the central government is satisfied on an application made by the board that such appointment is most beneficial to the company, the appointment of the person who has attained the age of 70 years may be made। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो वेल एंड गुड है, आप आराम से अपॉइंट कर सकते हो, कुछ नहीं, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, 70 ईयर्स की एज है, कोई बात नहीं, अपॉइंट कर लो। बट स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास नहीं हो पाया, मतलब 3/4 वोट्स तो नहीं मिल पाए। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हमें 3/4 वोट्स तो नहीं मिले, लेकिन हाफ से ज़्यादा वोट्स मिल गए, मतलब सिंपल मेजॉरिटी हो रही है, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन we were able to pass the ordinary resolution in the meeting but we were not able to pass the special resolution। तो since ordinary resolution तो पास हो पा रहा था ना, मतलब majority people were saying कि हाँ हाँ इसको अपॉइंट करना चाहिए, तो इस केस में there is some more relaxation कि स्पेशल नहीं हो पाया कोई बात नहीं, पहले तो स्पेशल कर दो, बहुत बढ़िया, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो पास होने की कंडीशन में आ गया था तो उस केस में आपको बस एक गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट अप्रूवल लेते ही यू कैन अपॉइंट दैट पर्सन एज अ MD, WTD और मैनेजर ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है, मैंने कैसे बोला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया बट वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द मोशन एक्सीड द वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट। तो अगर कोई अगेंस्ट में वोट्स आए थे बाई चांस तो उससे ज़्यादा ही है आपके फेवर वाले वोट्स, ठीक है। एंड इस केस में क्या करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोर्ड क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा, बोर्ड एप्लीकेशन देगा कि हम इस बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट की वजह से कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इस केस में आपको अगर एज अ बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बात से सेटिस्फाइड है कि हाँ ये कंपनी के लिए अच्छा है, तो उस केस में वो अप्रूवल दे देगा, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन अपॉइंट दैट पर्सन एज MD, WTD और मैनेजर ऑफ अ कंपनी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। In other words, approval of the central government is required if special resolution could not be passed। गवर्नमेंट का अप्रूवल का तभी स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास नहीं हो तभी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोविजन लाइज इन द फैक्ट दैट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वर इन फेवर ऑफ सच अपॉइंटमेंट देयर विश शुड नॉट बी टर्न डाउन सिंपली ड्यू टू नॉन पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो मेजॉरिटी तो देखो फेवर में आ गए थे ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया तो इस केस में मेजॉरिटी को निराश करना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए रिलैक्सेशन डाल दी गई। Thus the appointment can be regularized by seeking the approval of the central government which if satisfied can accord to such approval। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होगी तो ही वो इस चीज़ को इस चीज़ के लिए हाँ करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये तो हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर कोई भी MD, WTD मैनेजर जिसको आप अपॉइंट या एम्प्लॉयमेंट में लाना चाहते हो उस कंपनी के अंदर, वो कंपनी उसको अपॉइंट या एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकती अगर वो पर्सन एक अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है या फिर हैज़ एट एनी टाइम बीइंग एडजर्ज्ड एज एन इंसॉल्वेंट। तो वो बंदा अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है या फिर किसी भी टाइम पर एडजर्ज्ड था एज इंसॉल्वेंट, किसी भी टाइम पर वो इंसॉल्वेंट रहा है या फिर वो अभी अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है। थर्ड, हैज़ एट एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स और मेक्स और हैज़ एट एनी टाइम मेड अ कॉम्पोजिशन विद देम। मतलब कभी भी उसने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट जो करनी थी वो नहीं करी, वो सस्पेंड कर दी, मतलब नहीं करी, या फिर किसी भी टाइम पर उनके साथ कॉम्पोजिशन करी, मतलब वो आपस में वो कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया कि इतना ले लेते हैं, चलो अगर 10,000 का क्रेडिट आपने अवेल किया था तो उस केस में आपने उसमें सिर्फ 8,000 5,000 ऐसे ही पेमेंट किया, कॉम्पोजिशन कर ली, उनके साथ मिल बांट के ख़त्म करा, कम पेमेंट करी है, सस्पेंड ही कर दिया, पेमेंट ही नहीं दी, या फिर करी तो कम दी। तो इस केस में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऐसे काम किए हुए हैं तो वो भी बंदा आपकी कंपनी में MD, WTD या मैनेजर अपॉइंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट,
has at any time been convicted by a court of an offence and sentenced for a period of more than 6 months. So अगर किसी भी पर्सन को कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया है किसी ऑफेंस के एंड कॉन्विक्ट तो किया ही है और साथ साथ जो सज़ा दी है वो सज़ा 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा मिली है. आपको कोर्ट ने कॉन्विक्ट करा और आपको जो ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट किया है उसमें आपको सज़ा हुई है, जेल हुई है 6 महीने से ज़्यादा की, तो उस केस में 6 महीने तक की जेल हुई है ना तो चलेगा, आपको अपॉइंट कर सकते हैं. 6 महीने से ज़्यादा की जेल हो गई तो यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ MD, WTD और मैनेजर ऑफ द कंपनी. लास्ट, additional eligibility conditions for appointment as per schedule 5. सो कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस दे रखी हैं किसके हिसाब से, स्केड्यूल 5 के हिसाब से. पार्ट 1 ऑफ स्केड्यूल 5 टू द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ प्रिस्क्राइब्ड एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर विदाउट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस फेज़ में आपको अप्रूवल नहीं चाहिए होगा अगर आपने ये एडिशनल कंडीशंस को फुलफ़िल कर लिया है. तो क्या कंडीशंस दे रखी हैं, टोटल 4 कंडीशन दे रखी हैं, जिसमें से पहली कंडीशन ये है दैट पर्सन हैड नॉट बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी पीरियड और टू अ फाइन एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ conviction of an offence under 19 acts as specified under part 1 of schedule 5. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है कि वो पर्सन को कभी भी इम्प्रिजनमेंट नहीं पीरियड के लिए या उसको कभी भी कोई फ़ाइन लगा है तो वो फ़ाइन मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का लगा है, उससे ज़्यादा का फ़ाइन नहीं लगा हुआ है. किस एक्ट के ऑफेंस के लिए, तो वो 19 एक्ट्स के ऑफेंसेस हैं जो स्पेसिफाई किए हुए हैं स्केड्यूल 5 के पार्ट 1 में. अब ये सारे ऑफेंसेस की लिस्ट आपको नीचे भी मिल जाएगी, नीचे भी लिस्ट दी हुई है. कौन से एक्ट्स हैं, इंडियन स्टैम्प एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, देन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018. तो इन एक्ट्स के तहत अगर आपको कोई भी इम्प्रिजनमेंट हो जाती है किसी भी पीरियड के लिए या आपको कोई फ़ाइन लगता है जिसका अमाउंट 1000 रुपये से ज़्यादा का है, तो उस केस में आप इस फुलफिल नहीं कर रहे, दैट मीन्स विदाउट अप्रूवल यू कैन नॉट बिकम द MD, WTD और मैनेजर ऑफ द कंपनी. सेकेंड, he had not been detained for any period under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974. अगर आपको कभी भी डिटेन किया है किस एक्ट के तहत, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, स्मगलिंग कर रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज की कंजर्वेशन कर रहे थे, इस एक्ट के अंदर आपको डिटेन कर दिया ना किसी भी पीरियड के लिए, तब बिना अप्रूवल के तो कभी भी नहीं बन पाओगे MD, WT या मैनेजर. However, where the central government has given its approval to the appointment of a person convicted or detained under para 1 or para 2 as the case may be, no further approval of the central government shall be necessary for subsequent appointment of that person if he had not been so convicted or detained subsequent to such approval. पैरा 1-2 में आपको CG ने अपॉइंटमेंट के लिए फिर भी परमिशन दे दी, अप्रूवल दे दिया, ठीक है. तो अगर अप्रूवल एक बार दे दिया तो उस केस में वो अप्रूवल की वजह से आप अपॉइंट कर सकते हो उस पर्सन को और आपको दोबारा से सब्सिक्वेंट अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है अगर उसको कॉन्विक्ट या डिटेन किया जाता है सब्सिक्वेंट टू सच अप्रूवल मिलने के बाद. इफ़ ही हैड नॉट बीन सो कॉन्विक्टेड और डिटेन, तो बेसिकली ये है कि देखो इसमें ये लिखने का मतलब ये है कि आपको 19 एक्ट्स के तहत या फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ का डिटेन किया गया या फिर इम्प्रिजनमेंट हुई थी, राइट, कॉन्विक्ट हुए थे. अब इस केस में आपको आप
क्योंकि इस वाले केस में आ रहे थे तो आपको बिना अप्रूवल के तो अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, राइट। सो अगर अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस, तो आपने सीजी से अप्रूवल लिया और इन लोगों को अपॉइंट कर दिया। अब बाद में क्या हुआ, ये पर्सन को कॉन्विक्ट नहीं किया गया क्योंकि उस टाइम पर पेंडिंग था, ठीक है। तो उस केस में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आप फिर से जाकर अप्रूवल लो। So, however, where the central government has given its approval to the appointment of a person convicted or detained under para 1 or para 2, as the case may be, no further approval of the central government shall be necessary for the subsequent appointment of that person if he had not been so convicted or detained subsequent to such approval. बाद में पता चला नहीं कॉन्विक्ट हुआ इतने टाइम के लिए, तो भी दोबारा से आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। Third, he has completed the age of 21 years and has not attained the age of 70 years. मतलब आप 21 के हो चुके हो और आप अभी 70 के नहीं हो, तो उस केस में there is no requirement कि आपको अप्रूवल लेना पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर आपकी एज 21 ईयर्स से कम है, 70 की एज अटेन कर चुके हो, तो उस केस में या तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करवा पा रहे लेकिन सिंपल मेजॉरिटी हो रही है, तो सिंपल मेजॉरिटी के केस में यू कैन टेक दी अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अप्लाइंग टू दैट, एंड अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन अपॉइंट द पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स, राइट। उसके लिए तो स्पेसिफिकली बोल दिया। अगर आपकी एज 21 से ज़्यादा की हो चुकी है और 70 से कम की है, तो देर इज़ नो क्वेश्चन, ऑब्वियसली यू कैन अपॉइंट दैट पर्सन एज अ MD, WTD और मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो थर्ड वाला पॉइंट बहुत ईजी सा है। हाउएवर वेयर ही हैज़ अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स एंड वेयर हिज अपॉइंटमेंट इज अप्रूव्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, नो फर्दर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी नेसेसरी फॉर सच अपॉइंटमेंट। दिस वॉज ऑल्सो ऑब्वियस, क्योंकि हमने जब फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल तभी चाहिए जब आपका पास नहीं पा रहा, राइट। सो इस केस में इट वाज ऑब्वियस कि अगर आपकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा है बट 70 ईयर्स की एज नहीं अटेन करी है, तो उस केस में तो अप्रूवल चाहिए ही नहीं। और अगर चलो 70 की एज भी अटेन कर ली है बट कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू डू नॉट रिक्वायर टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। कूल। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, ही इज़ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो इस केस में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आप क्या करो, सीजी का अप्रूवल लो। Explanation 1 clarifies that the resident in India includes a person who has been staying in India for a continuous period of not less than 12 months. अगर आप कम से कम continuously 12 months के लिए इंडिया के अंदर थे तो आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया माने जाओगे as per explanation includes definition of resident in India as per this point. I hope you are clear with this section, this subsection, 96 subsection 3 till now. नेक्स्ट आता है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो कंटिन्यू हो रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर, एक्सप्लेनेशन 1 क्लैरिफाइज दैट रेजिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज़ बीन स्टेइंग in India for a continuous period of not less than 12 months immediately preceding the date of his appointment as a managerial person and who has come to stay in India for taking up employment in India or for carrying on a business or vocation in India. सो एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से अगर जिस दिन भी आप अपॉइंटमेंट के लिए चेक कर रहे हो उस दिन से जस्ट पहले के 12 महीने देख लो, क्या वो 12 महीने में कॉन्टीन्यूसली इंडिया में ही स्टे कर रहा है, इंडिया में ही स्टे कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड है, एंड अगर वो स्टे कर रहा है एंड हु हैज़ कम टू इंडिया फॉर स्टेइंग फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर से इंडिया में आया है या बिजनेस वोकेशन के लिए इंडिया में आया है, तो उस पर्सन को भी हम रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। This is definition as per explanation 1. What does explanation 2 say? Explanation 2 says clarifies that the condition above shall not apply to the companies in special economic zones. कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा तो सीजी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, ऐसी वाली रिक्वायरमेंट SEZ के केस में अप्लाई नहीं होगी। वो कंपनीज जो SEZ के अंदर हैं उनके केस में रेजिडेंट होना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल सही है, बाकी सारी कंडीशंस लगेंगी।
However, a person being a non-resident in India shall enter India only after obtaining a proper employment visa from the concerned Indian mission abroad. अब कोई person non-resident है इंडिया के लिए, बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा है, तो उस केस में उसको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के थ्रू आना चाहिए. ठीक है. फॉर दिस पर्पज सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अलॉन्ग विद द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द पर्सनस अपॉइंटमेंट. सो जो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा है, तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, साथ में अपने वीज़ा एप्लीकेशन के कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताना पड़ेगा कि उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस पर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए. ठीक है. सो ये हमारा हो जाता है सबसेक्शन 3 कंप्लीट, जिसमें हमने क्या पढ़ा, क्या क्या कंडीशंस है. पहले तो आपको सेक्शन 164 को कंप्लाई करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर ऑफ अ कंपनी. अगर सेक्शन 164 की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई तो यू कैन नॉट बिकम दी एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर ऑफ दैट कंपनी. फिर आपको सेक्शन 196 सब सेक्शन 3 के हिसाब से कुछ कंडीशंस बता रखी हैं कि जैसे कि 21 ईयर्स की एज, 70 ईयर्स की एज, एंड अप्रूवल कब चाहिए होगा गवर्नमेंट का, कब स्पेशल रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी. फिर आपको इंसॉल्वेंट है तो क्या होगा, क्रेडिटर्स से कभी भी पेमेंट सस्पेंड करी है या फिर कॉम्पोजिशन करी है या फिर कोई ऑफेंस कर दिया जिसका जो है इम्प्रेजनमेंट हुई है जिसकी मोर देन 6 मंथ्स. फिर आपको कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिए थे जहाँ पर आपको कंप्लाई करनी पड़ेंगी विदाउट, अब अगर आपने कंप्लाई कर दी तो यू not require any CG approval, otherwise you require the CG approval in case of these 4 conditions. What were the 4 conditions? First was the imprisonment under 19 acts or fine exceeding 1000 rupees under the 19 acts. Second was detention under Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974. Third one was 21 years, 70 years की age, and fourth one was resident of India. Resident of India की condition will not apply to companies operating in SEZs. फिर हमने पढ़ा कि कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए आ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए आ रहा है तो वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आपको कंपनी की प्रोफाइल बतानी पड़ेगी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बताना पड़ेगा और टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी पड़ेंगी इस पर्सन की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड. ठीक है. तो यहाँ तक हमारा सबसेक्शन 3 कवर हो गया. अब आ जाते हैं सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 196. व्हाट इज़ इट? प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट. अब हमने ये पढ़ लिया कि कौन बन सकता है, कौन एलिजिबल है. अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाएगा एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर का. सो सबसे पहले शेयर होल्डर्स, तो सबसे पहले आपको बोर्ड का एंड शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है. सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5. मतलब सेक्शन 197 को ध्यान रखना, शेड्यूल 5 को ध्यान रखना, उसको आप सुपरसीड नहीं कर सकते हो, उसको तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5, अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शैल बी अपॉइंटेड एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन पेबल शैल बी approved by the board of directors at a meeting and approved by the shareholders by a resolution at the next general meeting of the company. सो सेक्शन 197 और शेड्यूल 5 को तो ध्यान रखना ही रखना. अगर आपका कोई भी एमडी है, डब्ल्यूटीडी है, मैनेजर है, तो उसको आप अपॉइंट करोगे और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी अपॉइंटमेंट की और उसके रेम्युनरेशन की, अपॉइंटमेंट के साथ उसके रेम्युनरेशन की, वो सभी सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे मीटिंग के अंदर. दूसरी चीज़ अप्रूव की जाएगी बाय द शेयर होल्डर्स बाय अ रेजोल्यूशन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग. तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कन्वीन करा के इस चीज़ को अप्रूव करेंगे कि इस एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रेम्युनरेशन पेबल की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और फिर इस चीज़ को अप्रूव करवाया जाएगा बाय द शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग. उसमें रेजोल्यूशन पास होगा और इस चीज़ को अप्रूव करवाया जाएगा. सेकेंड, approval by central government. In case such appointment is at variance to the conditions specified in part 1 of schedule 5, the appointment shall be approved by the central government. तो अभी हमने part 1 of schedule 5 पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जिसमें 4 conditions mentioned थी. कौन सी? अगर कोई offense हो जाता है 19 acts के अंदर, या फिर offense हो जाता है और उसमें detention की जाती है under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974, या फिर आपकी एज 21 ईयर्स से कम की
कम की है और 70 ईयर्स से ज़्यादा की है और स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ है, या फिर रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो, तो उस केस में क्या था, इस केस में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस के पॉइंट में सबसे पहली बात ये लिखी थी कि अगर ये कंडीशंस को कंप्लाई विद कर लिया तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू टेक दी सीजी अप्रूवल, बट अगर कंप्लाई नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इन केस सच अपॉइंटमेंट इज एट वेरिएंस टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5, द अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Form MR2 has been prescribed by Rule 7 of the Company's Appointment and Remuneration of Managerial Personnel Rules 2014, in which the application for seeking the approval from the central government shall be made within 90 days of such appointment of MD or WTD or manager in the company. So MR2 एक फॉर्म जाता है जो कि कहाँ पर प्रिस्क्राइब किया हुआ है, रूल 7 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें क्या होता है, आपको एप्लीकेशन करनी होती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन के अंदर अंदर, 90 डेज़ के अंदर अंदर, जैसे ही आप एमडी या डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को अपॉइंट करते हो और आपको इस अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल चाहिए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म MR2। ठीक है, कितने दिनों में, 90 डेज़ के अंदर अंदर। next point is inclusion of certain disclosures in the notice में क्या क्या disclosures करने की ज़रूरत है उसके बारे में बात करते हैं। The notice convening the board or general meeting for considering such appointment shall include the terms and conditions of such appointment, remuneration payable and such other matters including interest of a director or directors in such appointments if any। सो इसमें नोटिस के अंदर क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि जो नोटिस है आपकी बोर्ड मीटिंग का या फिर जनरल मीटिंग का कोई भी नोटिस हो जिसमें भी अपॉइंटमेंट होने वाली है ऑफ द MD WTD और मैनेजर, तो उस केस में आपको टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इस अपॉइंटमेंट की, रेम्यूनरेशन पेबल की या कोई भी और मैटर है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी इंटरेस्ट है डायरेक्टर का, दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड, कि डायरेक्टर का या डायरेक्टर्स का कोई भी इंटरेस्ट है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 184 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने 184 सेक्शन रीड नहीं किया है, वीडियो नहीं देखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। आई हैव गिवन द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट, ये आपको चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है प्रोसीजर के, फोर्थ पॉइंट इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न में क्या दिया है कि रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है फॉर्म MR1 के अंदर। फॉर्म MR1 के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है विद द रजिस्ट्रार, मतलब ROC, विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाता है, अगर आपको CG अप्रूवल लेने की ज़रूरत है तो फॉर्म MR2 फाइल करके CG को अप्लाई करो 90 डेज़ के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और वैसे आपको जैसे ही कोई भी अपॉइंटमेंट होता है तो 60 डेज़ के अंदर अंदर MR1 में आपको रजिस्ट्रार को ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है, जो कि फॉर्म नहीं एक रिटर्न है। ठीक है, सो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े एक बारी फटाफट से क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। सेक्शन 196 सब सेक्शन 4, 196 सब सेक्शन 4 के अंदर प्रोसीजर दिया है अपॉइंटमेंट का, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है अप्रूवल बाय द बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स की कैसे कैसे होगा। कुछ नहीं है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी अपॉइंटमेंट के हैं, रेम्यूनरेशन पेबल के हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे, अप्रूवल दिया जाएगा। और उसके बाद जो भी शेयर होल्डर्स की नेक्स्ट जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर रेजोल्यूशन पास होगा रिगार्डिंग सच अपॉइंटमेंट। अगर आपका शेड्यूल 5 के पार्ट 1 में जो कंडीशन स्पेसिफाई की हैं वो कंप्लाई विद नहीं हो पा रही, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, नहीं कंप्लाई हो रही, वेरिएंस आ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के लिए MR2 फॉर्म के अंदर 90 डेज़ के अंदर अंदर जैसे ही आपने अपॉइंटमेंट किया है आप CG को ये एप्लीकेशन दे दोगे। आप कुछ डिस्क्लोजर्स आपको नोटिस के अंदर करने पड़ते हैं, तो क्या डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन कितना दिया जाएगा, और भी कोई मैटर है जैसे कि सेक्शन 184 का इंटरेस्ट, वो सब आप नोटिस के अंदर डिस्क्लोज करोगे। जो भी नोटिस दिया जा रहा है फॉर अ मीटिंग जिसके अंदर अपॉइंटमेंट होने वाला है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो 4th पॉइंट में रिटर्न दिया हुआ था, रिटर्न फाइल करनी है आपको टू द ROC विद इन 60 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। कौन से फॉर्म के अंदर, MR1 के अंदर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स पे, जो सेक्शन 196 सब सेक्शन 5 में दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर एन अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज नॉट अप्रूव्ड बाय अ कंपनी एट द जनरल मीटिंग,
any act done by him before such approval shall be deemed to be valid. देखो, अब हमने अभी अभी पढ़ा प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट सेक्शन 196 सब सेक्शन 4 के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा था कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं अपॉइंटमेंट को, उसके बाद जनरल मीटिंग जो भी होने वाली होती है उस अपॉइंटमेंट के बाद उसके अंदर शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करके उसको अप्रूव करते हैं. अब सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज के दिन अप्रूव कर दिया, जनरल मीटिंग 1 महीने बाद होने वाली है. अब इस जनरल मीटिंग के होने में 1 महीने का टाइम है, तो हो सकता है ना कि हमने जिस बंदे को अपॉइंट किया है उसने तो काफ़ी सारे डिसीजंस ले लिए होंगे, काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर लिया होगा इन दी कैपेसिटी ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, राइट. सो अब इस केस में जब जनरल मीटिंग हुई तो वो पता चला कि जो एमडी है, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर है, उसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था, तो उसका अपॉइंटमेंट हम अप्रूवल नहीं दे रही है, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट, उसको वैलिड नहीं माना जा रहा है. तो अब ये बताओ, जो उसने पिछले 1 महीने में काम किया है इन दी कैपेसिटी ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर बिकॉज ही वॉज बीइंग अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सो क्या वो वाले सारे एक्ट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर देने चाहिए? नहीं. सेक्शन 196 सब सेक्शन 5 में बोला कि वो एक्ट्स डीम्ड टू बी वैलिड माने जाएंगे इवन इफ बाद में जाकर उसका जो अपॉइंटमेंट है वो अप्रूवल नहीं मिल पाता इन द जनरल मीटिंग. इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो जो भी उसने काम उस डिसअग्रीमेंट से पहले जो भी उसने एक्ट्स में ऑलरेडी एंटर कर लिया है, एक्ट्स कर लिए हैं, वो सभी डीम्ड टू बी वैलिड माने जाएंगे. कौन से सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 196 सब सेक्शन 5 के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, managing director is appointed in the board meeting held on 20th May 19. ठीक है, जनरल मीटिंग वॉज टू बी हेल्ड ऑन 17th June 19. तो 20th मई को तो बोर्ड मीटिंग हो गई और 17 जून को जाकर आपकी जनरल मीटिंग होने वाली है फॉर अप्रूवल ऑफ सच अपॉइंटमेंट. बिफोर होल्डिंग द जनरल मीटिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जीक्यूटेड एन अग्रीमेंट, ठीक है, विद अनदर कंपनी ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस ऑन 3rd of June 19. The general meeting was held accordingly on 17th June 19 but did not approve the appointment of MD whether the executed agreement by MD is valid. So answer would be yes. किस वजह से? section 196 subsection 5 की वजह से. The agreement is valid. Acts done by the managing director from 20th May 19 to 17th June 19 is on approval of the appointment by shareholders at the general meeting shall be valid subject to the provisions of Companies Act 2013. अब ये क्यों लिखा? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने एक सेक्शन पढ़ा था जहाँ पर लिखा था कि अगर इस चीज़ की नॉलेज होती है, सेक्शन 176 पढ़ा था, राइट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसको इस बारे में नॉलेज थी कि ये पर्सन एलिजिबल नहीं है या ये तो अप्रूवल नहीं मिलेगा तो वगैरह वगैरह, तो हमने उसमें पढ़ा था ना कि अगर कुछ ऐसा होता है या फिर वो एक्ट्स जो वो कर रहा है वो आफ्टर द डेट ऑफ डिसअप्रूवल है तो वो सारे एक्ट्स क्या हो जाते हैं? इनवैलिड हो जाते हैं. तो वो वाली चीज़ों के लिए ही लिखा है कि अगर कोई कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दे रखे हैं रिगार्डिंग दिस तो उसको आप कंप्लाई करोगे ऑब्वियसली, बट वैसे तो ये वाले एक्ट्स वैलिड माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 196 सब सेक्शन 5 में ऐसा दिया हुआ है. एग्जेम्पशंस की बात करें तो एग्जेम्पशंस दे रखी हैं टू गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. अब गवर्नमेंट कंपनी को क्या एग्जेम्पशन है वो देखते हैं और प्राइवेट कंपनी को कौन से सेक्शन सब सेक्शंस के लिए एग्जेम्पशन है वो देखेंगे. दोनों के लिए अलग अलग दिया है. तो गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी में सेक्शन 196 सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होंगे. However, for availing the exemption, such government company must have not committed a default in filing its financial statements under section 137 or annual return under section 92 with the registrar. ठीक है, तो क्या बोला हुआ है गवर्नमेंट कंपनी के केस में सेक्शन 196(2), 196(3), 196(4) कोई भी सेक्शन नहीं लगेगा. 196(2), 4 एंड 5, 196(3) अप्लाई हो जाएगा. मतलब अगर वो अपॉइंटमेंट हो रहा है एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर का तो नो प्रॉब्लम, आप उसको 5 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट कर सकते हो अगर कोई आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, राइट. एलिजिबिलिटी कंडीशंस तो फॉलो करने ही पड़ेंगे क्योंकि सेक्शन 196 सब सेक्शन 3 में दिए हुए हैं और उसके रिलेटेड कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है. 196(4) की आपको अंदर आपका प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट था, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये वाला प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. सबसेक्शन 5 में वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स की बात करिए तो ये भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपका सबसेक्शन 4 ही अप्लाई नहीं हो रहा तो सबसेक्शन 5 ही क्यों अप्लाई होगा.
तो वो भी अप्लाई नहीं कर रहे। सो बेसिकली आपका सबसेक्शन 1 एंड 3 अप्लाई हो रहा है, जिसका मतलब एमडी मैनेजर को एक साथ अपॉइंट नहीं कर सकते, और जो आपका 3 था वो था कंडीशंस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी के केस में अप्लाई होंगे, बाकी कोई भी सबसेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। Now, let's read about private companies की exemption. So, in case of private companies, section 196 subsection 4 and subsection 5 shall not apply provided such private company has not committed a default under section 137 or section 92 with the ROC. तो बेसिकली प्राइवेट कंपनीज़ को क्या एग्जेम्पशन दे रखी है सबसेक्शन 4 और 5 के लिए। 4 और 5 क्या था? प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स। सो प्राइवेट कंपनी को बाकी सब कुछ कंप्लाई करना है, मतलब टेन्योर वाला भी सेक्शन अप्लाई करना है। अगर आपको याद है तो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी स्पेसिफिकली मेंशन करके कंफ्यूज करने की कोशिश करी थी कि क्या प्राइवेट कंपनी को कोई एग्जेम्पशन है कि अगर वो चाहे तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू लाइफ टाइम के लिए किसी भी एमडी मैनेजर या फिर डब्ल्यूटीडी को अपॉइंट कर सकते हैं। नो, प्राइवेट कंपनी को कोई एग्जेम्पशन नहीं दी सबसेक्शन 2 के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को दे रखी है। प्राइवेट कंपनी को तो सिर्फ ये एग्जेम्पशन है कि उसको ये अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर मेंशन है सबसेक्शन 4 में और जो भी वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स की बात हो रही है, ये वाले सबसेक्शंस अप्लाई करने नहीं है, बाकी तो सब कुछ करने हैं। सो ध्यान से पढ़िएगा एग्जेम्पशंस को भी, क्योंकि एग्जेम्पशंस के अंदर सबसेक्शंस मेंशन्ड होते हैं और आपको ये चीज़ नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप गलती कर सकते हैं। सीधा ये मत देखना कि प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 196 के अंदर एग्जेम्पशन है। नो, कौन से सबसेक्शन के लिए एग्जेम्पशन है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट। सो एग्जाम्पशन गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी को दोनों को दे रखी है, बट कुछ कुछ सेक्शन के लिए गवर्नमेंट कंपनी को सबसेक्शन 2, 4, 5 के लिए दिया और प्राइवेट कंपनी को 4 एंड 5 के लिए दिया। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पशंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और दोनों में कॉमन पॉइंट तो हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही चलता आ रहा है। व्हाट इज़ दैट? सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का कंप्लायंस किया होना चाहिए, तभी ये गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन मिल पाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 196। डू गेट अ थम्स अप, एंड इन केस यू फील कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और आपको अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ऑफ फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड आई अपलोड वीडियोज़ एवरी डे एट 7 PM। सो अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो आप उसको भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एज एंड व्हेन द वीडियो इज़ अपलोडेड। वैसे वो हमेशा शार्प 7 PM पे अपलोड हो जाती है। और अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हैं फॉर इम्प्रूवमेंट तो प्लीज़ उसको मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपको कोई और भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कोई चैप्टर रिक्वेस्ट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। See you in the next video tomorrow at 7 PM. Bye bye.